spanning 4 decades is not merely a measure of time. It is legacy built through commitment, leadership, and unwavering dedication to the organization. Beginning the journey as a young executive trainee and steadily rose through the ranks and also accepting the challenging tasks across different business verticals, including mining, which is the true visionary leaders and their achievement in their own career. Because most of us, we have been having the experience in the thermal power plant, but the business vertical in mining, altogether we have to learn, and that too at the age of 55 and all, which is not that easy. And the entire business scenario in the mining, which is day in, day out, it is a great challenge. Sir, you have shown there also your leadership, which is the really remarkable and credit for your entire NTPC career. As a head of HR, I have a privilege of working closely with last 7 months. And though the period was very brief, it was truly enriching as my colleagues were sharing under your guidance and encouragement. And we were able to initiate and accomplish several meaningful improvement even within the span of this 6 to 7 months. And that is beneficial to all the employees and their family members. But during this period, we worked together to strengthen the quality of life in our township in introducing some of the new facilities with other with our NTPC other establishments, the opening of restaurant in the township, and long-awaited social space for our own employees and their family members, and the other amenities which is also requested by our spouses of all our employees, which is including beauty parlor. And we have also successfully conducted plant level council meeting once in 6 months, and which is fostering the constructive dialogue between the management and the employees, and also which is talking about the productivity and the challenges which our own employees are facing, and which establishes the mutual trust and cooperation. I would like to emphasize his leadership always during the crisis situation. It was exemplary. He demonstrated a true leader remains with the confidence and focuses on the solution rather than dwelling on the problems, which is one of the most important character for any good leader. We also witnessed successful programs like organizing various community and employee engagement initiatives. It starts with for me, it is on the Republic Day, and then followed by Anand Mela and residential camp program, which is also created the strength for the Vallur unit and the NTPC town management, sir. And one of the quality which stands out on is accessibility to all employees. He listened patiently and encouraged the constructive discussion, and also respected the opinions of others, and which may not be acceptable or still we may differ, but however you have given the space and time to listen, which is very critical for the younger generation. And before I conclude this heartfelt appreciation, which is most importantly to our Madam President, Eva Jyoti Ladies Club. Madam, your active leadership, wholehearted involvement in bringing the togetherness of spouses and family of our NTCL employees, which added unique warmth and
togetherness among the NTCL family. समय क्या है कि साहब से हम लोगों को ज़्यादा सुनना है, इसीलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस एक दो बात कह करके बस अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत लोगों ने सर आपके लिए फ़ोन करके बोला कि साहब को हमारी तरफ से बेस्ट विशेस बोलिएगा, बधाइयाँ दीजिएगा। तो दो लोगों का सर नाम जरूर लेना चाहता हूँ जिन्होंने बोला मुझसे कि आप अपनी फेयरवेल स्पीच में जरूर साहब को हम लोग की तरफ से बोलिएगा, कांग्रेचुलेशन दीजिएगा और बेस्ट विशेस दीजिएगा। एक है एक्स डायरेक्टर HR RINL विशाखापट्टनम श्री राकेश नंदन साहब, और दूसरे हैं हमारे GM PE C&I हैदराबाद श्री KV प्रसाद। तो दोनों लोगों ने बोला कि आप जरूर साहब को बोलिएगा फेयरवेल स्पीच में हम लोग की तरफ से धन्यवाद। एक मेरे बॉस थे सर, वो एक्स RED रिटायर हुए थे, तो रिटायरमेंट के 1.5 साल बाद सर मिले तो मैंने उनसे पूछा सर सब ठीक चल रहा है ना? तो उन्होंने बोला हाँ सब तो ठीक चल रहा है, बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पूछा क्या प्रॉब्लम है सर? बोले यही है कि थोड़ा सा सब्जी काटने में मैडम जैसा बारीक चाहती है वैसी सब्जी कट नहीं पाती है। लेकिन साहब का जैसे एक्सीलेंस में रिकॉर्ड है सब है, तो किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए साहब तैयार है। और जैसे इधर कंट्रीब्यूट किया है आगे मैडम के साथ आप कंट्रीब्यूट करेंगे अर्ली लाइफ। Special day and a very proud moment for our family, as my father has completed 38 years of service at NTPC. 38 years is a very long time. Papa, you have dedicated more than half of your life to serving this company. And as your daughter, I feel incredibly proud of you. I am also so proud of my mummy because she has your constant pillar of support throughout the entire journey. She managed everything beautifully, from taking care of the home to raising me and Shilu. Whenever you both faced any hardships, you stood together, faced them bravely, and always came out successful. Thank you, Mummy, for always being by his side. Papa, ever since my childhood, I have seen your hard work, your punctuality, your passion for your work, and most importantly, your leadership qualities. All of this inspires me so much to achieve great things in my own future. The most beautiful thing about you is that no matter how tired you were after coming home from the office, and no matter how much pressure you were under, you always made time for us. I think my dad is born for excellence. Like, you know, whatever he sees, whatever he tries to achieve, he can actually do that. Because I have seen that, you know, like there are moments in his career where there are certain interviews that he was preparing for. Because obviously, like, he started as an employee, then he became an AGM, DGM, and then HOP. But there were times where, you know, like he wanted to crack an interview to get the promotion, and he was not able to. And then obviously he was sad, and my mom is trying to take care of him and all of that thing. But I never felt that, you know, he cannot crack that interview next time, because I always believed that, you know, he can crack it next time, because that's the confidence that I have for him. So when I was in like Shakti Nagar, like where my dad was posted in Singrauli, so I was a kid, so I used to like cry, you know, to make him buy toys for me. And like I remember that I used to make things very awkward for him. Like he has to like any kind of a toy, be it like Power Rangers or any kind of like a remote control car and all of that thing. So I used to just lie down on the floor and used to just start crying. And then my dad used to come to me and then, you know, to hold me up and then he tried to manage the situation. And when I actually grew up, then I realized that how much I embarrassed him in those toy shops. And then that was the first moment in my life when I started having respect for him. That's how he handles situations. And also, like when we were in Kehelgaon,
I used to get a lot of fevers. Like there was a time like I used to always fall ill, and there was a doctor who actually suggested that I should apply some kacha mango on my feet so that my temperature can reduce. So I remember that he used to go to temple at 3 a.m. in the morning to get those kacha arms so that he can come to me and I can apply the kacha on my legs so that my temperature can reduce. So like at that moment I have felt that he has done a lot of things for me which I am like really grateful for. And also there's a thing that I really wanted to share. So my mom, she was going under surgery. So we used to like visit a hospital for the operation and all of that thing. And I really wanted to mention Dr. Rashia, Dr. Hema, the CMO, and obviously like Dr. Satish. They actually helped us to pass through that phase which was like very difficult for us. मेरे वल्लूर वासियों, 37 साल 10 महीने 6 दिन। Out of my 60 years of life in NTPC, almost 64%. और मैंने NTPC छोड़कर कुछ नहीं किया। सर्वप्रथम, शायद मैं कितना बोल पाऊंगा आज मुझे खुद ही पता नहीं है, तो आज मैं सर्वप्रथम मेरी वाणी से मैंने ठेस पहुंचाया हो तो सर्वप्रथम मैं क्षमा याचना करता हूं। कृपया ये याद रखिए कि ये जो भी कार्य हुआ था ये 19 महीने में नहीं हो पाता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आकर के 19 महीने रह पाऊंगा। रह सकता हूँ, मैं बेसिकली रह पाऊंगा तो नहीं है, रह सकता हूँ, बिकॉज मुझे बोला गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने ही यहाँ आप रहेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 19 महीने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। मेरे से पूर्व किसी एक वक्ता ने कहा था कि विच वॉज माई टफेस्ट लोकेशन। Actually, I don't see it that way. The problem in hand is the problem of the day. तो मेरे सामने जो भी challenges आए, उसे मैंने उस समय पूरा करने की कोशिश की। Yes, mining was the better challenge I can say, क्योंकि वो boundless condition में काम होता है। जैसे मेरे बेटे ने भी कहा था कि आप बाहर जा करके पूरे ओपन में जाकर के भीड़ में लोगों को समझा रहे हो कि आपको घर छोड़ना है आपका। This is the toughest thing that you can convince a person कि आप अपने पुश्तैनी घर को छोड़। वो टफेस्ट था, लोग नहीं मानते थे, वो हमारा हमेशा जो एफर्ट रहता था वो फेल ही करता था। अदर देन NTPC में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा है जो कि हमें किसी न किसी स्वरूप में बड़े छोटे स्तर पे देखने को न मिलेगा। वल्लूर आने के बाद, वल्लूर जब मेरा तबादला हुआ था तो सब जानते हैं जैसा कि वल्लूर के बारे में कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं कहता है, मैंने भी वही सुना था। मैंने जिनसे भी वल्लूर के एम्प्लॉय से भी जब बात किया था तो उन्होंने बहुत अच्छा कोई भी फीडबैक मुझे नहीं दिया था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा हाँ, बहुत अच्छी स्थिति में तो चीजें नहीं है। मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं उसी तरीके से उसी में रह करके झेल करके काम करके चला जाऊं यहाँ से, या कुछ बेहतर करने की कोशिश करूं। मैंने बेहतर करने की कोशिश को चुना। फिर मैंने अकेले काम करना शुरू किया। शुरू में मुझे लगा नहीं, ये काम अकेले नहीं हो सकता है। तो आज जो भी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है
या ये वल्लूर में ये काम हुआ है, ये संभव हो सका है सिर्फ आपके और आपके मेहनत से। अकेले एक आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है, दिशा दिखा सकता है, बट चलना आपको है, चलना साथ में है, सबको लेकर के। कोशिश मेरी यही रही थी कि मैं सबको साथ लेकर के चलूं। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, पिछले 10-15 दिनों से इतनी बातें मेरे बारे में बताई जा रही हैं कि अब मुझे विश्वास होने लगा है कि हाँ मैंने शायद कुछ किया है। तो ये कार्य कुछ करने के लिए आपको एक अच्छे लीडरशिप की जरूरत होती है। जो गुण मुझे मिले, मुझे अपने कार्यकाल में कुछ बहुत अच्छे लीडर के साथ काम करके, मैं आज उनका नाम लेना चाहूँगा। मुझे जो सबसे अपने HOPs जो बहुत क्लोज थे, उनके क्लोजली इसके साथ काम करने का मौका मिला, उनमें से मैं 3 लोगों का बहुत अच्छे से नाम लेना चाहूँगा। श्री UP पानी, श्री सुभाषिष घोष एंड श्री PK महापात्रा। ये तीनों एक सीरीज में कहलगांव में आए थे और कहलगांव के पूरे कायापलट की कहानी इन्हीं तीनों के कार्यकाल में हुआ था। तो वो जो स्पीड था, वो जो कार्य करने की क्षमता थी, वो जो कार्य करने की विधि थी, ये शायद उनसे ही सीखा था। कहलगांव में हम लोग बहुत निरुत्साहित हो गए थे कि अब ये स्टेज 2 नहीं आ पाएगा। उस समय पानी साहब का वहाँ आगमन हुआ और वहाँ आकर के उन्होंने करके दिखाया वो स्टेज 2 सिर्फ 12 महीने में 3 यूनिट लाइन ला करके यूनिट आ गई। उसके बाद सारे फैसिलिटीज को लाना था जो अगले 2 साल के भीतर लाना था। उसमें जो घोष साहब ने मेहनत किया था, किस तरीके से उन्होंने मॉनिटर किया था, किस तरीके से उसको अवार्ड करवाया था, वो सब बहुत मैंने क्लोजली देखा था। और महापात्रा साहब ने आकर के उसके बाद चीजों को स्टेबलाइज करके उसको फुल लोड तक ले गए। तो ये जो तीनों लोगों की कहानी है, ये एक जर्नी किसी फंसे हुए प्रोजेक्ट को पूरा करने, उसको अच्छे से पूरा करने और उसको सुचारू रूप से चलाने की कहानी है। और इन तीनों से बहुत ज़्यादा सीख मिलने को मिलती है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे इन तीनों का साथ एक के बाद एक मिला। और हाँ, कोई भी इंसान इतना समय बाहर नहीं दे सकता है अगर आपके घर में प्रॉब्लम हो। तो मैं आज अपनी अर्धांगिनी मैडम अंजू सिन्हा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो मेरा साथ दिया। आप मुझे प्लांट में देख पाए या कहीं बाहर देख पाए तो ये उन्हीं की वजह से हुआ, क्योंकि मैं घर से निश्चिंत रहता। मैं थोड़ा मुझसे SK शंकर जी ने कहा था कि जब आप अपना स्पीच देंगे तो अपना पूरा जीवनी बताएंगे NTPC में कैसे कैसे आपने ये किया है। थोड़ा सा मैं उस पर बताना चाहता हूँ। 26 अगस्त 1988 को NTPC ज्वाइन करके मैंने पेट्स में ट्रेनिंग हुई थी, पेट्स बदरपुर में। 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिड टर्म अप्रेजल हुआ। मिड टर्म अप्रेजल के बाद में हमारी पोस्टिंग सिंगरौली ऑपरेशन में हुई थी। वहाँ से जाकर के ऑपरेशन में रहा। ऑपरेशन में मैं 12 साढ़े 12 साल रहा। 1.5 साल उसके बाद टरबाइन मेंटेनेंस में रहा। सब सारे पड़ाव लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हमारा एक ऐसा पड़ाव था कि NTPC जब हमने ज्वाइन किया था 5000 की कंपनी थी, 5000 मेगावाट की कंपनी थी, जो आज बढ़ के करीब 92,000 मेगावाट की कंपनी हो गई। और ये बदलाव और ये तरक्की हमने अपनी आंखों से देखा है। वो एक मन में जो NTPC के मन में जो NTPC के मन में जो काम करने की क्षमता की ज़ील होती है, वो मैंने लोगों में देखा। आज NTPC पूरे भारतवर्ष में मौजूद है और ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी कंपनी है। तो शक्तिनगर में ज्वाइन करने के बाद वहाँ मेरी शादी हुई 1996 में। मेरा बेटा 98 में वहीं पैदा हुआ, तो हमारा परिवार बनना वहाँ से शुरू हुआ था।
फिर हम लोग तबादला होकर के कहलगांव आए। कहलगांव में मेरा परिवार कंप्लीट हुआ जब मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। आपने दोनों से आज सुन लिया, बाकी तो उन्होंने बता ही दिया कि कैसे कैसे वो लोग रहे, कैसे कैसे क्या किया। फिर उसके बाद जब ये लोग बड़े हो रहे थे तो मुझे इन लोगों के मतलब बचपन तो बिताने में समझ खेलता कूदता तो था इतने, बट इन लोगों कैसे आगे बढ़े हैं मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया। सब मैडम का योगदान है। इसके कारण कहलगांव में भी मेरी जब ट्रांसफर हुई थी एनटीआर में, उसमें कोयले का प्रॉब्लम था और उस कोयले के प्रॉब्लम को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। वो भी मैं एक नाम लेना चाहता हूँ अपने पूर्व बॉस की, श्री टी गोपाल कृष्णा की। इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की। उनका कार्य करने का तरीका बहुत ही दूसरा था। जो बोलते थे ना आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उनका बॉक्स कुछ था ही नहीं। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला था, कैसे हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को फ्रेंडली इन्वायरमेंट में कन्वर्ट कर लेना हो, ये मैंने उनसे सीखा था। ये सब करते करते बच्चे पढ़ते गए। बेटा 10th क्लास हमारा कहलगांव से ही किया था, बेटी 8th में थी तो मेरा ट्रांसफर हजारीबाग माइनिंग में हुआ। थोड़ा परेशान थे कि क्वारंटीन लाइफ नहीं है, बट हजारीबाग एक बहुत छोटी सी जगह थी, बट वहाँ सारे सुविधाएं वहाँ हमारे अवेलेबल थी। तो हमने हजारीबाग में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वहीं पे मेरे बेटे की नौकरी लगी। बेटी ने 10th 12th वहीं से किया। तब जाके मेरा ट्रांसफर 7 महीने के लिए सिर्फ दादरी हुआ था, जहाँ से बेटी का एडमिशन बीबीए में हुआ था, वहाँ से वो वहाँ हो गई वहाँ। और तुरंत हमारा तबादला सीमांध्री हो गया। सीमांध्री में जाते ही हम लोग का ऐसा हुआ कि दोनों बेटे बेटी घर से बाहर, बेटा जॉब में चला गया था, बेटी पढ़ने के लिए बाहर जा चुकी थी। तो हमारे घर में करने के लिए और कुछ था नहीं। शायद हम लोगों ने लड़ाई करने को नहीं चुना, तो लोगों के बीच जाकर के मैडम ने लेडीज क्लब को संभाला और मैंने प्लांट को जो दिया। जो जिस तरीके से बातें हो रही थी, जब मैं वहाँ पहुँचा था, एनडीसीटी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी। और एनडीसीटी की हालत इतनी खराब थी कि आईडीसीटी वहाँ लगाने की बात चल रही थी। उस एनडीसीटी को रिपेयर करवाना वो एक अपने आप में काबिल तारीफ है, जिसको मैं बहुत हाई पॉइंट मानता हूँ अपने करियर में। वो कार्य संपन्न हुआ जो आपने डीके तोमर ने जो बताया उसको, वो रियली काम बहुत ही अच्छा था। वो मेरे सामने आधा संपन्न हुआ। यहाँ आके तो यहाँ की कहानी आप सब जानते ही हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, सब आपके सामने ही हुआ है। चीजें यहाँ बहुत ही अच्छे शेप में तो नहीं थी, शायद इसीलिए मुझे इतना काम करने का मौका मिला। कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, बट एनटीपीसी में पैसे की कमी किसी को नहीं है। सुख सुविधाएं देख ही रहे हैं आप, हर चीज अवेलेबल है और यही चीजें हम जाकर के आगे मिस करेंगे। एवेन्यूज बहुत मिलेंगे, रास्ते वहां भी बहुत मिलेंगे, बट जो इस तरीके का एक ही मतलब अपने परिवार का जैसा लगता है, हम जो भी सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं फेसेस के साथ करते हैं। इस चीज को हम एनटीपीसी से दूर जाके जरूर मिस करेंगे। बट मैं जहां भी रहा हूं, मैं चीजों को बहुत ओन करके रहा हूं और मुझे मेरी सारी मधुर स्मृतियां उन्हीं चीजों से हैं। आज जब मैं रिटायरमेंट के करीब, अब तो रिटायर हो ही चुका हूं, जब मेरे करीब आ रहा था तो मेरी सारी यादें मैं जब ज्वाइन किया था उस समय तो जा रही थी कि हम लोग शुरू में कैसे स्ट्रगल किए थे सिंगरौली के डेज में। वो नई कंपनी थी, हर चीज के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता था। आज सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कंपनी ने जो आपको दिया है, आप भी थोड़ा थोड़ा करके उसे लौटाएं, ताकि कंपनी दिन दुगनी रात तो चौगनी तरक्की कर सके। कंपनी को अच्छा रखेंगे तो कंपनी आपको अच्छा रखेगी। मैं आज जब सेवानिवृत्त हो रहा हूं तो मैं पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ जा रहा हूं। मेरे मन में कोई भी
रिग्रेट नहीं, मेहनत किया, मेहनत का फल मिला। शायद मैं जिस यहाँ तक पहुँचा हूँ, पहुँचने में लोगों को उसमें दिक्कत भी होती है, बट मैं पहुँचा, मुझे ये मौका मिला। हाँ, कुछ चैलेंजिंग स्टेशन ज़्यादा मिले मुझे, एक आध थोड़ा आराम करने वाला सेशन मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट मैंने इस चैलेंज को भी स्वीकारा और तहे दिल से काम किया। There is no shortcut to hard work, please understand। मेरे बारे में जो भी लोगों ने कहा, सुनिए, समझिए और काम करिए। बाकी चीजें तो अब एक बोलते हैं ना कि अब मैं एनटीपीसी एम्प्लॉय से एक्स एनटीपीसी एम्प्लॉय हो गया हूँ, बट जो बोलते हैं, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, वंस एन एनटीपीसीएन ऑलवेज एन एनटीपीसीएन, ये हमेशा मेरे पास रहेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम जब पढ़ के जब कॉलेज से बाहर निकल रहे थे तो 4 कंपनियां बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हम लोग के समय पब्लिक सेक्टर में जाने का क्रेज था। तो 4 कंपनियां थी, IOCL, ONGC, BHEL और NTPC। NTPC ही थी जो सबसे स्टेबल लाइफ की थी। इसका आज ये है कि हम लोग इस तरीके के माहौल में हम मनोरंजन अपना अपना कर रहे हैं। सोचिए और अपनी सोच को अंजाम दीजिए। जहां बैठे हैं वहां अगर आप दूसरा तरीका नहीं अपनाएंगे तो वहीं पहुंचेंगे जहां पे लोग पहले पहुंचे। और मैंने कुछ खुद नहीं किया है, तब आपके थ्रू ही हुआ है, आप में क्षमता है। और एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, प्लीज पेंटिंग और स्ट्रक्चरल रिपेयर पे स्पेशल ध्यान दीजिए। उसमें लेटअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। थोड़ा सा डिले करेंगे वो आपको बहुत रुलाएंगे। कार्य हो सकता है, ये मैंने दिखाया है, उसी तरीके से कार्य को आगे करते रहिए। बाकी यूनिट्स बहुत ही स्मूथ चलती है। और मैं पहले भी अपने स्पीच में बोल चुका हूं, सुपरलेटिव्स पे मत जाइए। ये हाईएस्ट एवर, बेस्ट एवर, ठीक है, ये लास्ट ईयर के लिए था। आज हमको उससे भी बेटर बनना है। दैट शुड बी द आइडिया। मैं सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे 19 महीने और 11 दिन के वल्लूर सफर को इतना अच्छा बनाया, मेरी बात मान करके वो कार्य किया जिससे आज सभी लोग प्रसन्न हैं। और जो फैसिलिटीज यहाँ डेवलप हुई है उसको अच्छे से एंजॉय करिए। 2 चीजें मैं और बताना चाहता हूँ। मेरे लाइफ पर 2 बहुत हाई पॉइंट्स हैं। पहला, जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था 22 जनवरी 1924 को, सब आप लोग को याद होगा कि उसमें पहले हाफ में छुट्टी थी, उस दिन छुट्टी दे गई थी भारत सरकार के द्वारा। वो यज्ञ मैंने भी किया था वहां सीमाद्री में, फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है, मैं ला नहीं पाया। तो वो एक हाई पॉइंट था, मैं उसको लगा था मुझे कि वही मेरा हाई पॉइंट रह जाएगा। पर यहाँ आकर के मुझे अपने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ये मौका मुझे मिला, और वो मेरे लाइफ का ऑलवेज हाई पॉइंट रहेगा। और मैं सभी को गर्व से कह सकूंगा कि हाँ, मैंने वल्लूर में जो मंदिर है उसका प्राण प्रतिष्ठा मैंने करवाया। यह आपने सारा काम आप लोगों ने किया है, पर प्राण प्रतिष्ठा जरूर मैंने किया था, मेरे सामने हुआ था, मैंने किया था, फिर तो आप लोग भी। तो ये दोनों मेरे हाई पॉइंट हमेशा रहेंगे। और मैं सबों का धन्यवाद करने में लेडीज क्लब का DJLC का जरूर, उनके जो योगदान है उसको भी जरूर याद करना चाहूंगा। आपने जिस तरीके से कॉलोनी में लोगों को एक साथ रखने में हमारी सहायता की है वो काबिले तारीफ है।
मैं आपका प्रोग्राम देखता था, आपका जो एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह भी देखता था, मैं सुनता था कि मैडम हमारे यहाँ 39 प्रोग्राम हुए हैं, 40 प्रोग्राम हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं फिर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने जो भी काम किया इंटरटेनमेंट फन के लिए काम करिए, बस समाज के उन वर्गों के लिए भी जरूर काम करिए जो आपसे कुछ अपेक्षा रखते हैं। वो आप कर रहे हैं, उसको आप जारी रखिए और इसी तरीके से पूरे वल्लूर वासियों को एक सूत्र में पिरोए रखिए। पहले भाषण में भी मैं बोल चुका हूं ये, अगर प्लांट सही नहीं चलेगा तो आप कॉलोनी में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो प्राइमरी थिंग इज स्मूथ रनिंग ऑफ द प्लांट, उस पर ध्यान दीजिए। सारे मौकाएं आएंगे, आपको सारे एंजॉयमेंट के मौका मिलेंगे। और किसी ने पूछा था मुझसे पिछले किसी मीटिंग में कि गुगादी प्रसाद को क्यों इतना आप पसंद करते हैं। पसंद मैं करता हूं कि नहीं पता नहीं, मुझसे 2 अपेक्षाएं और रखता हूं। जो स्पोर्ट्स ग्राउंड मतलब स्टेडियम है उसका कायापलट अभी उनको करना है, और ऑडिटोरियम का आपको बनवाना है। ये दोनों बहुत मुश्किल से हम लोगों ने करेंगे ना। हाँ, उनका इसीलिए पसंद करता हूँ, हर समय बोलते मैं करूँगा। तो नहीं, ये दोनों कार्य हो जाएंगे बिकॉज मेन है जो अप्रूवल है वो हो चुका है। ये दोनों हो जाने से वल्लूर टाउनशिप एक पूरी अच्छी कॉलोनी बन जाएगी और शायद हम अगली बार कभी आएंगे तो उस चीजों को कभी एंजॉय कर सकते। तो आपने जिस तरीके से मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे अपने जितने भी मेरे गुरु हैं एनटीपीसी में उनको भी धन्यवाद देता हूँ, जो जिन्होंने 38 साल में मेरा इतना अच्छे से भरण पोषण करके मुझे इस जगह तक पहुंचाया। आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी उस तरीके से निरंतर तैयारी करते आगे बढ़ते रहें वल्लूर को, और जहां भी आप रहें ट्रांसफर होकर जहां जाए उसको आगे तरक्की करते रहें। एनटीपीसी बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाएं। और मैं पुनः अंत में ये कहूंगा, अगर मेरी वाणी से, अगर मेरे किसी एक्शन से किसी को ठेस पहुंची हो तो कृपया मुझे माफ कर देंगे। उन चीजों को उस तरीके से याद रखेंगे कि शायद अगर मैं हंस के ही बात करता तो इतनी चीजें नहीं कर पाता जो मैंने आज वल्लूर के लिए किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जीवन को सही करने के लिए, और वल्लूर मेरे लिए हमेशा सबसे ऊपर रहेगा मेरे बाकी जितने भी 6 लोगों से मैंने काम किया। थैंक यू वेरी मच। जो सर का अप्रोच है टुवर्ड्स वर्क, इट इज़ व्हाट अ विजनरी लीडर शुड हैव। सर का जो थॉट प्रोसेस है, ही इज़ 3 स्टेप्स अहेड। क्या चल रहा है, क्या काम होना है, क्या करवाना है, ही नोज ईच एंड एवरीथिंग। एंड क्वेश्चंस भी सर के उसी हिसाब से फ्रेम रहते हैं कि लोगों से क्या पूछना है। एंड बाय 3rd और 4th क्वेश्चन आई थिंक एवरीवन इज क्लियर कि एक्सपेक्टेशन क्या है। So the kind of approach sir has I think is the main reason due to which Vallur has reached its height. Everyone has talked about the operational highlights, operational performance which we have achieved in his tenure. And in fact जो history में अगर हम देखेंगे Vallur का performance operational highlights का, that is one of the best in 25 and 26 which has been achieved in his tenure. So I would like to have a big round of applause on the performance which has been done. अगर कोई क्रिकेट लवर होगा तो सौरव गांगुली का एक किस्सा याद होगा
जिसमें लॉर्ड्स में जब हम नेटवेस्ट टूर्नामेंट जीते थे इंग्लैंड के खिलाफ 2002 में, देन दैट वाज द मोमेंट जब इंडियन क्रिकेट में चेंज आया था। बिकॉज जब उन्होंने अपनी टी शर्ट को उठाया गया था लॉर्ड्स के ग्राउंड में और उन्होंने उतार के उस टी शर्ट को घुमाया था, दैट ब्रॉट अ चेंज एंड दैट वाज अ स्टेटमेंट विच वाज स्पेसिफिकली फॉर इंग्लैंड क्रिकेट टीम कि दिस इज नॉट द old Indian cricket team. This is a new cricket team which wants to bring a change and which has created a change by beating England in England. So I think sir, that change you have brought in Valur and the kind of performance and the kind of name which we have right now, that is because of the perseverance and determination which you have shown. And I would say that he's the biggest brand ambassador of NTECL. एक किस्सा है, एक अपर मैनेजमेंट में किसी ने बोला कि सर ने बोला कि मैं वल्लूर में हूँ, सो somebody said that कि okay, so that is a very shabby plant. So that was a statement given by the senior management, but sir took it on. It's like कि it was a pride was hurt, so he worked and that was not in his tenure. So he worked in 19 months, and last time when he visited, he invited that senior management to come to our Valur plant and visit that plant. Now it's not that shabby, and you will see that change. Obviously, it is not in line with the other stations, but there is a progressive change which has been done, and a lot of work has been done in plant area, which is quite visible. Now, in fact, in morning also we were discussing like blue and white, everything is now clearly visible in the plant. So that kind of change has been brought, and that kind of brand ambassador he has been. And whenever he is going, whenever he is visiting other people, external stakeholders, he is creating an image in which Valur is now visible to everyone, to the higher management, and people are talking about the performance of Valur. So thank you sir for giving that image to the upper management, and that Valur can also do marvels. In the end sir, I would just say that there's a one line of Om Shanti Om that Zindagi to abhi baki hai mere dost. So इनसे बेस्ट लीडर इन NTPC देखा नहीं है। ये हुए कैसे? अदर लीडर्स भी थे, पहले वाले लीडर्स भी यहाँ पे रह के गए हैं। जिस ड्रास्टिक और जिस फास्ट मोड में अभी जो चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिले एट बोथ प्लांट एंड काउंसिल लेवल, ये हुआ कैसे? एक लीडर के लिए सबसे जो टफ जॉब होता है वो होता है कि लोगों को, टीम हमारी सेम है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा हमारे इस टीम के अंदर सर को जो टीम मिला वल्लूर के अंदर बहुत सारे चेंजेस नहीं हुए इन इज लास्ट 19 मंथ्स। उन्हीं लोगों ने करके दिखाया, लेकिन ये हुआ कैसे? जो सबसे टफ पार्ट होता है वो है लोगों को कंफर्ट लेवल से बाहर खींच के लाना, प्लस वो इनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ फीलिंग देना कि यू कैन डू इट। हमारे गांव में एक कहावत बहुत चलती है कि शादी होने जाओ आलू प्याज का भाव पता चल जाएगा, लेकिन शादी होने के बावजूद भी मैडम ने सर को आलू प्याज का भाव पता नहीं चलने दिया, घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा ताकि वो NTPC और देश के लिए ज्यादा से ज्यादा काम चल सके। मैडम आपका बहुत बहुत आभार। और साथ भी मैं यहाँ बैठी महिलाओं से ये भी अनुरोध करूंगा कि मैडम का अनुसरण करें, हमें भी चिंताओं से मुक्त रखें। धड़कन मूवी किस किसने देखी है? सबने देखी। धड़कन मूवी में एक डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं। तो सर का डायलॉग रहेगा कि मैं तुम्हारा ख्याल न रखूं ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हारा ख्याल न रखूं ये हो नहीं सकता,
और तुम प्लांट का ख्याल ना रखो, ये मैं होने नहीं दूंगा। First of all, I congratulate Sinha sir for his 38 years tedious journey for the upliftment of this Maharatna company NTPC. सर ने अपना जर्नी जब शुरू किया था तब एनटीपीसी एक छोटा परिवार था। आज जब उस लीडर हो रहा है, अभी एनटीपीसी 90,000 गीगावाट के ऊपर है। सर, आपके लीडरशिप जो आपके अंदर जो गुण है वो अभी आपके रिटायरमेंट के साथ साथ एनटीपीसी एक बहुत बड़ा लीडर को लॉस कर रहा है, क्योंकि अभी आप जैसे लीडर अभी धीरे धीरे एनटीपीसी में कम होते जा रहा है। एक चीज और बोलना चाहता हूँ सर, सिंगरौली से जब कालगांव गए, कालगांव से जब दूसरा प्रोजेक्ट में गए, साथ साथ अपना जो एक्सपीरियंस गैदर किए भी, तो एवरी सारे प्रोजेक्ट में सर अपना जो चैलेंजेस फेस किए उसको बखूबी से उसको हैंडल किए और हर जगह में अपना जो पहचान है वो छोड़ के आए। जैसे आज लास्ट जॉब एनटीसीएल में भी अपना जो करिश्मा है वो आपके चाहे टाउनशिप हो चाहे प्लांट हो, एवरीवेयर इट इज विजिबल एंड दैट्स व्हाई आई थैंक टू यू। साथ साथ एक ट्रू लीडरशिप का जो गुण होना चाहिए, ही इज ए वेरी गुड टास्क मास्टर, ही इज ए वेरी गुड, मतलब क्या बोलते हैं, इनको डाटा इतना अच्छा से याद आता है जो हमारे शिक्षक लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। He is a very keenly acumen about finance, about any project activity, how it is to be concluded. He is keen for execution and साथ साथ वो सबको सलाह भी देते हैं कैसे करना है, कोई भी मुसीबत आए से उसको कैसे सॉल्व भी करना है। That is the true leadership quality. सर का कोई भी प्रॉब्लम उसको छोड़ के नहीं जाते। जैसे अभी एजीएमटीएस ने बताया जो कुछ ड्यूज जो हम लोगों को पे था, इसके पहले भी सर के पहले भी काफी सारे एचओपीस रहे होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम पुराना जो इश्यूज है उसको सॉल्व करना वो सबके पास का नहीं है। जो अपना प्लान के बारे में सोचते, अपना कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो उसको हासिल करके जरूर लाते हैं। तो सर के अंदर, सर का जो इनिशियल डेज में जो सर के अंदर जो ऊर्जा था वो आज भी उतना ही एनर्जी के साथ वो आज अपना ऑफिस को छोड़े। सर के चेहरे में आज भी वही मुस्कुराहट है जो फर्स्ट डे हम लोग जो कंट्रोल रूम में सर के साथ मुलाकात हुआ था उस दिन का था। तो सर का बहुत ज्यादा फिजिकली चेंजेस नहीं हुआ, आज भी ऐसे ही है। आज भी हमको अपने नाम से पुकारते हैं, जो फर्स्ट डे से हमको जानते हैं। सर का लीडरशिप में जैसे सारे वक्ता ने बताया, चाहे वो कालगांव हो, और एक चीज हम बोलना चाहते हैं, क्योंकि लोगों का चेंजेस बहुत जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब तक सिंगरौली में थे हम लोग को उतना मौका नहीं मिला अपना आपको प्रूव करने के लिए। सर जब सिंगरौली छोड़ के कालगांव में गए और साथ साथ उनका ऑपरेशन से जो मेंटेनेंस बैकग्राउंड हुआ, उसके साथ साथ सर का जो नॉलेज का जो इम्प्रूवमेंट गेन हुआ, वो सब सिंगरौली कालगांव छोड़ने के बाद जो उनका जो पोस्टिंग हुआ कोल माइंस में, दैट टाइम आल्सो आई आल्सो मेट हिम एट ईओसी नोएडा दैट टाइम। तो उस टाइम में भी सर के बारे में कोल माइंस में जो इश्यूज चल रहा था उसके बारे में हम लोग बेखूबी खबर मिलता था। तो ये पहचान आता है जो जिसके अंदर इतना जो क्वालिटी है, जो सबके साथ चलने का, जो एक साथ मिल के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो सर कोल माइंस में भी अपना दिखा के आए हैं।